Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start class 8 SST. In SST, today we will read Unit 5, Chapter 10 Law and Social Justice. This is last chapter in your civics, and this chapter is important for you because having read this chapter you can easily understand what is the meaning of social justice. I hope you will already understand what is the meaning of law, because in your civics, in the chapter of understanding law, we have discussed a lot about the meaning of law and how can it important for the citizen of India. What is the role of court, what is the role of government and parliament, everything we have discussed that chapter. Today we will discuss law and social justice. If you remember your previous class, class 7th, in SST book, one story you have read, the story of Sart. The story of Sart from class 7th book, where you see that a chain of market link the producers of cotton to buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling was taking place at every step in chain. Many of the people directly or indirectly involved in the productions of the shirt. The small farmers producing cotton, the weavers of erode, or the workers in the garment exporting factory faced exploitation or an unfair situations in the markets. Feed, they faced exploitations or an unfair situation in the market. Markets everywhere tend to be exploitive of people, whereas workers consume or producers. The protect people from such exploitations, the government makes certain law. These law try to ensure that the unfair practices are kept at a minimum in the markets. I hope you can easily understand that the production of shirt and the various process through shirt completely make वो व्यवस्था जिससे शर्ट पूरी तरह से बनता है, उस पूरी व्यवस्था में, उस पूरे सिस्टम में आपने एक चीज़ पॉइंट आउट किया होगा कि उसमें कई स्टेप्स हैं, कई लेयर्स हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे से लिंकेज है. लाइक फार्मर कॉटन उगाता है, कॉटन बड़े फार्मर्स के पास जाती है, वहाँ से ट्रेडर्स, वहाँ से फिर फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री वर्कर्स उसको बनाते हैं और फाइनली वो कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनने के बाद वो मार्केट में जाता है, फिर दुकानों में जाता है, और दुकानों से वो आपके पास आता है. हर स्टेप्स में एक एक वर्ग जुड़ा हुआ है. पीजेंट्स, वर्कर्स, फैक्ट्री ओनर्स एंड शॉपकीपर्स, एंड देन आफ्टर ये आप पहुंचता है कंज्यूमर के पास. तो कंज्यूमर तक पहुंचने तक कई सारे स्टेप्स में आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिखाई देगा, और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस दिखाई देगी. क्या इनकम्स, प्रॉफिट सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? परहैप्स नो. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से कपास पैदा करने वाला एक छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात करने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से
शामिल हैं। बहुत सारे लोग इस बाजार व्यवस्था में शामिल रहते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होते हैं। इनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना हमेशा बनी रहती है। दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द समटाइम्स ट्रेडर्स, समटाइम्स इंडस्ट्रियलिस्ट। हर जगह उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है और इसी एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉ लाती है, कुछ कानून लाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए, बाजार में इन चीज़ों पे कंट्रोल की जाए। और ये कंट्रोल कैसे होगी, इसी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब बाजार की स्थिति पर ध्यान देंगे। वी विल सी हियर द सिचुएशंस ऑफ मार्केट। लेट अस टेक द कॉमन मार्केट सिचुएशन where the law is very important. This is the issue of worker, which private companies, contractors, business persons normally want to make as such profit as they can. In the drive for the profits, they might deny workers their right and not pay them wage. For example, in the eye of the law, it is illegal or wrong. It denies workers their wage. Similarly, to ensure that workers are not underpaid or paid fairly, there is a law of minimum wage. Workers has to be paid not less than minimum wage by the employer. The minimum wage are revised upwards every few years. Here, according to light instructions, according to that, कि बाजार की जो स्थिति है उसमें जो कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो दिस इज द इश्यू वर्कर्स वेज प्राइवेट कंपनी में इश्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेसमैन नॉर्मली वेंट टू मेक अप मच प्रॉफिट एज दे कैन। वो एक ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और ज़्यादा मुनाफा लेने के बाद मजदूरों को कम से कम वेतन देते हैं। लेकिन ये बात गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये फिक्स है कि एक वेतन, एक निश्चित राशि डेली वेजेस के लिए तय की जाती है और ये डेली वेजेस मजदूर को देना पड़ता है। मजदूरों को बिजनेसमैन के द्वारा या ट्रेडर्स के द्वारा या जिनकी फैक्ट्री है फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा उनको देना ही पड़ती है। डेली वेजेस फिक्स होती है और इस डेली वेजेस में कुछ सालों के बाद क्या करना पड़ता है, अपवार्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड। ये डेली वेजेस को रिवाइज करना पड़े। इनको जब तक न्यूनतम वेतन जो है मजदूरों को जो मेहनताना कम न मिले उनको प्रॉपर मिलता रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का एक कानून बनाया गया। और ये कानून इस तरह की व्यवस्था देता है कि जिसमें मजदूरों का वेतन निश्चित हो और इस न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी उनको नहीं दी जा सकती। इस बात को ये कानून क्लियर करता है। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी दी जाती है, देनी भी चाहिए। और जिस तरह मजदूरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया, उसी तरह बाजार में उत्पादक और उपभोक्ताओं एज विद द लॉ ऑफ मिनिमम वेजेज विच इज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देयर आर आल्सो लॉ दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इन मार्केट। जिस तरीके से मजदूरों की सुरक्षा प्रदान की जाती है उसी तरीके से न्यूनतम वेतन कानून बनाया गया और इस तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, कंज्यूमर एंड जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी कानून
जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी कानून, और जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी कानून, तीनों के बीच एक निश्चित संबंध इस तरीके से संचालित किया जाता है उसमें किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, कोई भी ये ना महसूस हो कि वो एक्सप्लॉयटेशन उसका हो रहा है। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो आप अगर देखें नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखेगा। इस टेबल में ला, वाई इज इट नेसेसरी एंड हुज इंटरेस्ट डज नॉट ला प्रोटेक्ट, 3 कॉलम बने हुए हैं। लॉ क्या है, वाई इज नेसेसरी, ये आवश्यक क्यों है, और इसमें किसके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। इन 3 चीज़ों के आधार पे आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, आप देखिए। मिनिमम वेजेज एक्ट स्पाइसेस दैट वेजेज शुड नॉट बी बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम, वाई नेसेसरी, many workers are denied fair wages by their employee because or badly need work. Workers have no bargaining power and are paid low wages. And whose interest does the law protect? This law is meant to protect the interest of all workers, the particularly from laborers, constitutions workers, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, etc. Whose interest does the law protect? कहता है कि आप इन तीनों चीज़ों को देखें तो कहता है कि ये कानून क्यों बने, कानून क्या है। तो कानून, इस जो लॉ है, ये लॉ क्यों ज़रूरी है, तो इसमें आप इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं कि जो मिनिमम डेली वेजेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो गवर्नमेंट ने पारित किया, उसमें ये निश्चित किया गया है कि किसी भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों है, तो बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिकों सही मेहनताना नहीं देते, और चूँकि मजदूरों को कम वेतन की ज़रूरत, कम मजदूरों को जो है वो काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वो बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते, इसलिए वो काम करने के लिए मजबूर हैं। और इस कानून का फ़ायदा किसके हित में है, तो कहता है ये कानून बहुत सारे मजदूरों, ख़ास तौर से जो खेत में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस में हैं, जो फैक्ट्री ओनर मजदूर हैं, जो डोमेस्टिक्स हैं, उनके लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया है। अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। कहता है लॉ स्पेसिफाइड दैट देयर बी एडिकेट the safety measures in the workplace, for example alarm system, emergency exit, properly functioning machineries। और यहाँ कानून बनाए गए कि जो कार्यस्थल पे, जहाँ पे वर्क फैक्ट्री, जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया है, जहाँ पे काम होते हैं, वहाँ पे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और ये व्यवस्था कानून के तहत है। जैसे इमरजेंसी अलार्म बजनी चाहिए, वर्क प्लेस फॉर एग्जाम्पल्स अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट प्रॉपरली, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर देम। लॉ रिक्वायर्ड द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड standards, for example the electrical appliance have to meet safety standards. The consumers might to be put to risk by the poor quality of products such as electrical appliance, food, medicine। कहता है कि लॉ रिक्वायर कर ली, ये कानून की ज़रूरत भी है। कानून जो जिन चीज़ों की गुणवत्ता है, इन गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। वस्तु अपनी गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर ये बताने वाला कानून न हो तो क्या होगा, निश्चित रूप से कंज्यूमर्स के राइट्स प्रभावित होंगे। और यहाँ पे उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस किसके हित में होगा, तो कहता है उससे आप देखेंगे तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो
बहुत सारे सामान मार्केट में आ चुके हैं, वो अगर गुणवत्ता मानकों पे सही नहीं होंगे, अपने क्वालिटी बेसिस पे वो अच्छे नहीं होंगे, तो इससे क्या होगी, इससे उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सपोज आज चाइनीज चावल आ रही है जो प्लास्टिक की बनी हुई है, खूब मार्केट में बिक रही है, लेकिन सभी लोग चाइनीज चावल जो ये जानते हैं कि चाइनीज चावल प्लास्टिक से बनाई जा रही है, और जो ये नहीं जानते, तो जो नहीं जान रहे प्लास्टिक से बनाई है वो तो खरीद के खा रहे हैं। तो यहाँ पे उनके लिए क्या है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए खतरा है ये। ठीक ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट्स में हैं जो अपनी गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करते, और ऐसी चीज़ों के लिए कानून जरूरी है, और गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान देती है। जरूरी चीज़ जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों का नियंत्रण में रखने वाले भी कानून बनाए गए हैं। अदरवाइज बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको सस्ते रेट पे तेल और सस्ते रेट पे चीनी या नेसेसरी नीड्स नहीं मिल सकते। गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है, और ऐसे कुछ कानून भी हैं जो फैक्ट्रियों को हवा, पानी और प्रदूषण फैलाने पे रोकते हैं। इट मीन्स लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइस एसेंशियल गुड्स फॉर नॉट हाई, फॉर एग्जाम्पल शुगर, kerosene and food grains, and law requiring that the factories do not polluted air and water. According to that, no one have right to pollute the air and water. If anyone will do, he will punish by law. We will read the story of भोपाल। हम भोपाल की स्टोरी पढ़ेंगे अभी आगे। हम वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से एक फैक्ट्री में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और काफ़ी अधिक संख्या में लोग कैजुअलिटी होती है। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियन एसोसिएशंस बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू यूनियन वर्कर्स कैन यूज देयर कंबाइंड पावर टू डिमांड फेयर वेजेस एंड द बेटर वर्किंग कंडीशंस। मजदूर यूनियन संगठन वाले भी इस संबंधित कानून के लिए भी इनके कानून बनाया कि जो यूनियन जो संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सारे सही वेतन और बेहतर कार्यस्थल की स्थिति में आवाज उठाते हैं। दैट इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द लेबर यूनियंस, द वर्कर्स, दे कैन यूज देयर कंबाइंड पावर टू डिमांड फेयर वेजेज एंड द बेटर वर्किंग कंडीशंस। वो अपने मालिक से इस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो अब इन चीज़ों से आपके सामने कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए जिससे सोशल जस्टिस लोगों को आसानी से मिल सके। बट द मेयरली मेकिंग लॉ इज नॉट इनफ। द गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड दैट दिस लॉ आर इम्प्लीमेंटेड। दिस मीन्स द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। Enforcement become even more important when the law seek to protect the weak from the storage. For instance, the ensure that every worker gets fair wages. The government has to regularly inspect work site and punish those who violate the law. When the workers are poor or powerless, the fear of losing futures earning, facing the reprisal often force them to accept low wages. Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wage. In such cases, it is the crucial that law are enforced. It means क्लियर है कई सारी चीज़ें। क्या 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 तो कहती है वो सारी चीज़ें ये कि कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है। अगर कानून बन जाए और सारे काम हो जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। इफ लॉ इज इम्प्लीमेंटेड इन सोसाइटी एंड एवरीवन फॉलो इट प्रॉपरली, देन आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम इज वेयर एंड व्हेन। प्रॉब्लम कहाँ है और कब है? व्हेन द सम powerful industrialists, traders, they try to follow the law। जब वो कानून को मानने से इन किन प्रकार क्या करते हैं, मना करते हैं। कानून बनाना काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू भी किया जाए ठीक तरीके से। और इसकी मीनिंग्स हुई कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
अगर मान लीजिए उदाहरण कानून लागू न होने पाए, मान लीजिए मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते रहना चाहिए। और अगर कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे दंडित करना चाहिए। अगर कोई भी रूल्स के अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रहा है उसके ऊपर फाइन करनी चाहिए, ताकि मजदूरों को अच्छा वेतन मिल सके, ताकि मालिक भी इस तरह से अच्छी तरह समझते हैं कि अगर कानून तोड़े तो उन्हें भी दंडित किया जा सकता है। और ऐसी सूरत में ये बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानून अच्छी तरह से लागू किया जाए। तो ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। थ्रू द मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दिस लॉ, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ of the individuals or private companies so as to ensure social justice. Many of these laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by Indian constitutions. For the instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. Similarly, the constitution lays down on child below the age of 14 years shall be employed to work in many factories or mines or engaged in any other the hazardous employment. It means through the making, enforcing and upholding these law, अगर इन कानूनों को बनाने, लागू करने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रित कर सकती है, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति, उदाहरण के लिए एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉज अंडर बिलोंगिंग। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि शोषण से मुक्ति अधिकार का अर्थ है कि किसी भी को कम मेहनताना न मिले, मधुआ मजदूरी को काम न करे, लोगों को ज़बरदस्ती काम न कराया जाए, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 14 ईयर्स से बिलो जो बच्चे हैं उनको कारखानों में या जो माइंस में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए क्या रहती है, उसके पास राइट्स है। गवर्नमेंट के पास राइट्स है कि यदि वो किसी भी मजदूर के अधिकारों का हनन करती है, किसी भी छोटे बच्चों को काम में लगाती है, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकता है। आप अगर पिक में देखें राइट साइड में तो एक बच्ची बर्तन धुल रही है, और नीचे की पिक में देखें तो एक बच्चा है जो चाय की दुकान पे चाय दे रहा है। दीज आर ऑल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रूल। आर्टिकल कहता है वहाँ पे आर्टिकल 24, जहाँ पे कहता है कि बच्चों से क्या किया जाए, फोर्सली काम न लिया जाए, बच्चों से कोई काम नहीं लिया जा सकता। 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्रीज और माइंस और एंगेज इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। हाउ आर दिस लॉ प्लेड आउट इन द प्रैक्टिस? टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट द चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर। ये सारे प्रश्न हैं जिसको हम इस पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से सामने आते हैं, कानून सामाजिक न्याय और चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स एगो। 24 साल पहले भोपाल में विश्व की सबसे बड़ी एक क्या हुई, एक त्रासदी, भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई भोपाल में 24 साल पहले। क्या हुआ था? यूनियन कार्बाइड यूसी, एन अमेरिकन कंपनी हैड फैक्ट्री इन द सिटी इन विच द प्रोड्यूस द पेस्टिसाइड्स। एक अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड जिसमें पेस्टिसाइड्स बनते थे। एट मिडनाइट ऑन 2 December 1984 द मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक
हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस यूसी प्लांट। एक सबसे जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो 2 दिसंबर की रात, मध्य रात क्या हुई, लीकेज शुरू हुआ और ये लीकेज ने कई हजार लोगों की जानें ले ली। रिमेंबर अजीज़ा सुल्तान survived at about 12:30 a.m. I woke to sound of my baby the coughing badly. मैं जगी 12:30 बजे रात को अपने बच्चे के खांसने की आवाज़ सुनकर। In the half light, I saw that the room was filled with a white cloud. मैंने देखा कि मेरा पूरा कमरा सफ़ेद गैस से, धुएं से भरा हुआ है। I heard people shouting, "Run, run!" मैंने सुना कि लोग चिल्ला रहे थे, भागो भागो। And I started coughing with each breath seeming as if was breathing in fire. My eyes were burning. मैंने देखा कि खांसी बहुत तेज आने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और फिर एक आँख भी जलने लगी। ये कंडीशंस बहुत ही भयावह थी। Within 3 days, more than 8,000 people were dead. Hundreds of thousands were maimed. क्या 8,000 से लोग ज़्यादा मारे गए और उससे भी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए। कहता मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास families of which nearly 50,000 people are today to seek the work. Among those who survived, many developed the severe respiratory disorders, eye problem, and other disorders. Children develop the peculiar abnormalities like the girl in the photo. The disaster was not an accident. UC had deliberately ignored and essentially safety measures in order to cut costs. Much before the Bhopal disaster, there had been the incidents of gas leak killing a worker and injured several. Despite the overwhelming evidence pointing to US as responsible for the disaster, it refused to accept responsibility. In the ensuing the legal battle, government represented the victims in the civil case against UC. It filed the 3 billions compensate case in 1985, but accepted lowly the $417 million in 1989. Survivors accepted against the settlements, but the Supreme Court ruled that the settlements amount would stand. US stopped its operation but left behind tons of toxic chemicals. These have spilled into the ground, seeped into the ground, the contaminating water. Dow Chemicals, the company who now owns the plant, refused to take responsibility or clean up. 24 years later, the people are still fighting for justice, for safe drinking water, for healthy care facilities and jobs for the people poisonous by US. They also demanded and Anderson's, the US chairman who faced the chemical charges, be prosecuted. Dear student, here we have discussed the very great tragedy, not great, हम यहाँ कहेंगे कि it was the hazardous conditions. क्या थी? Industrial tragedies took place in Bhopal. This is the world largest इंडस्ट्रियल ट्रेजिडीज़। ये इंडस्ट्रियल ट्रेजिडीज़ थी भोपाल की, जहाँ हमने बात की कि किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई
भोपाल के लोगों में रात्रि 2 दिसंबर की रात में भोपाल में गैस लीक करने लगी। मिसाइल आइसोसाइनाइड एक गैस है जो सबसे जहरीली गैस मानी जाती है, और इस जहरीली गैस के रिसाव से बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कह रहा है 8,000 लोग तो तुरंत मारे गए और करीब 50,000 लोग आज भी बीमार हैं, जो आज कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका असर उनके शरीर पे काफ़ी बुरा पड़ा, और इस कंडीशन से उनसे निकालने के लिए, उबारने के लिए, ये तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा जानबूझकर नज़रअंदाज किया। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखानों में गैस का रिसाव हो चुका था। घटनाओं में एक मजदूर की मौत भी हुई थी, जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। यूनियन कार्बाइड जो सबूतों से पूरी तरीके से साफ हुआ कि जो ये महाविनाश हुआ उसके लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई। इस कानूनी लड़ाई में जो पीड़ित थे उनकी ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 सिविल जो कोर्ट में गए तो 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ मुआवजे के रूप में उन्हें मिली गवर्नमेंट को। और इस त्रासदी से जीवन बच निकलने वाले लोगों में इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। अब यूनियन कार्बाइड का कारखाना बंद कर दिया गया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए गए। जो टॉक्सिक पॉइजनस केमिकल्स थे वहीं छोड़ दिए गए। ये रसायन रिस कर ज़मीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ पानी दूषित हो रहा है। और अब यहाँ संयंत्र डाओ केमिकल्स नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसको साफ सफाई की जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के पानी, साफ पानी उन्हें नहीं मिल रही। सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोग के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया, लेकिन वो उसमें अभी सफल नहीं हो पाए। इस तरीके से हमने देखा कि ये ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी ने किस तरीके से रोल प्ले किया। अब इन सब के आधार पे हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वर्कर्स वर्थ, मजदूर के लिए एक मजदूर की कीमत क्या होती है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे इसके आगे। गुड बाय एंड टेक केयर।